I hope I'm audible. There's no issue in the voice. Okay, great. Okay, so today we'll be learning a very basic makeup look, like everyday makeup look, so that you guys can look good in and out of your pageant. So yeah, let's start with it. I'll show you a demonstration on myself while showing you all the products which I personally prefer and recommend to you guys according to your skin type, your face shape. So yeah, before switching on to the makeup, we'll first talk about skincare, which is equally important when it comes to makeup. So give me a second. Let me just pin myself. एंड दिस इज फॉर एवरीबडी एल्स फॉर whosoever जिन्होंने भी लैपटॉप से लॉगिन किया है, आप अस्मिता को अपने स्क्रीन पे पिन कर सकते हो स्पीकर व्यू पे, ताकि यू कैन सी हर क्लोज अप एंड यू नो व्हाइल द डिटेल्स आर मोर क्लियरली विजिबल. जो फोन से लॉगिन कर रहे हैं उनको तो एनीवेज अस्मिता विल बी विजिबल ऑन द स्पीकर व्यू. सो या Okay, so first we'll talk about skincare, which is our CTM, which should be done twice a day, which is your morning skincare routine and your night skincare routine. So it's equally important to do it before you do your makeup, so that आपकी skin already एक fresh glow रहा है आपकी skin पे, and automatically you will use less product जब आपकी skin already glow कर रही होगी. So first we'll start with cleansing. For cleansing, I'll be using a wet wipe, just to ensure कि कोई भी मेकअप का रेसिड्यू नहीं है मेरी स्किन पे. You can either use a makeup remover if you have any leftover kajal or a lip shade or anything. So just make sure. Right now my skin is all clean. I have washed my face. So cleansing can be done in two ways. Either you do a very quick cleansing, which is basically using a face wash or a cleansing wipe, or second, you do a deep cleansing, which you do once a week or twice or thrice a month, which is your cleanup, which is scrubbing using a pack or a mask. So yeah, it is very important to do it on a regular basis. Now I'm done with my cleansing. Now I'll use a toner. Now what happens is when we clean our face, basically even using a scrub or a face wash, तो हमारे जो pores होते हैं skin के वो open हो जाते हैं. So it is very important before using any chemicals to close them. So for that we'll use a toner. Now many of you will skip this step, but it is very important कि आप toner use करो अपने daily skin care में भी और before makeup also. So this is from Aroma Magic. It's a very affordable brand. So I'll just spray it on my face. And I prefer buying a spray toners because otherwise unnecessarily you will need a cotton pad and then dab it. So excess product waste ही होता है. So it's better to use a spray toner and just let it absorb into your skin. And we'll give a 30 to 40-second break after every step so that it penetrates in your skin. So now I'm done with my cleansing and toning. Now it comes moisturizing. It's CTM. So it's moisturizing now. So basically, it depends on your skin type कि आप कैसा skin care prefer करोगे. So there are people who have dry to normal skin to oily skin, and some have very sensitive acne prone skin. तो आप अपनी skin care जो purchase करो वो आप अपने उसको देख के लो. जैसे कि जो भी dry skin to normal skin में लाया करते हैं, they should always go for a oil based or a cream based products, be it your moisturizer, be it your face wash. तो हमेशा ये प्रेफर करो क्योंकि वो आपको एक एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देगा. Whereas those who have combination skin or oily skins, they should go for a gel based or a water based products. ठीक है, या foam based, be it your face wash also. So that will give a better result for your skin. Like right now I'm using one from Pond's. Now this is a gel based moisturizer. I am a combination skin type. So yeah, I'll quickly just moisturize my face. So I repeat this skincare routine in morning as well as night. रात को ये difference आ जाता है कि I use a night cream instead of using a moisturizer. Rest all is same. Okay, so there are also products in the market which are serums and face oils. You must have heard. So जो serums होते हैं, they are basically to treat your problems. Sometimes you have very excessive oil generate होता है कईयों के skin पे जिनसे acne हो जाता है या dryness रहती है
या कोई भी XYZ प्रॉब्लम होती है आपको, तो उसके लिए टी ट्री ऑयल्स या ऐसे ऑयल्स आते हैं, सॉरी ऑयल कह रही हूँ, सीरम्स आते हैं. सो सीरम्स शुड बी यूज बिफोर योर मॉइस्चराइजर, बिकॉज जो उनका जो फॉर्मूला होता है वो उससे लाइट होता है. सो इट शुड बी यूज बिफोर अ मॉइस्चराइजर. एंड जो फेस ऑयल्स होते हैं विच इज बेसिकली टू गिव एक्स्ट्रा हाइड्रेशन, जिनको भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इट शुड बी यूज्ड आफ्टर अ मॉइस्चराइजर, क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर थिक. सो that should be used after a moisturizer. And also you can mix it with your foundations as well. Okay, so I have given like sufficient time to my moisturizer. Now I'll switch on to primer. अब प्राइमर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आते हैं, जैसे सिलिकॉन बेस्ड आता है, वाटर बेस्ड आते हैं, क्रीम बेस्ड आते हैं. सो सिंस आई एम अ ऑयली स्किन, मोर टुवर्ड्स ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन होती है जो टी जोन जिनका ऑयली होता है एंड सी जोन ड्राई होता है, और वाइस वर्सा. सो आई विल बी यूजिंग अ silicon based primer which is good for oil control. So this is from Colorbar and it is a very good primer, affordable again. I'll try to use all affordable products. So I'm just taking a drop of it and applying it wherever I feel I have no open pore problem or I have my acne issues. Basically a primer is to create a barrier between your skin and your makeup, and it also levels your skin. जैसे कईयों को ओपन पोर्स का प्रॉब्लम रहता है तो पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर आते हैं, या फिर एक्ने होता है, कहीं पे बम्पी स्किन होती है, तो वहां आप प्राइमर अप्लाई कर सकते हो टू लेवल इट, ताकि एक स्मूथ फिनिश आ जाए जब आप फाउंडेशन अप्लाई करो. सो जहां जहां जैसे चिन के अराउंड लोगों के जैसे बम्प्स होते हैं यहाँ पे, सो वहां वहां, और जहां मेरी नोज के अराउंड आया ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, सो जस्ट टू लेवल देम. Rest I'll just apply it all over my face, remaining product. So priming is done. First step was CTM, then priming. Now we'll come to correcting and concealing our face. Now correcting is basically used to न्यूट्रलाइज योर स्किन्स. कई लोगों को बहुत रेडनेस होती है आपके फेस पे, रेडनेस होती है, या फिर डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, जिसे बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, या फिर और भी आपको कोई भी कंसर्न है, किसी का एक्ने स्पॉट रह गया है या किसी को किसी चोट का निशान रह गया है. सो वी यूज करेक्टर्स टू न्यूट्रलाइज देम. सो करेक्टर्स कौन से जनरली मार्केट में यूज होते हैं, विच इज ऑरेंज एंड ग्रीन करेक्टर. देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ करेक्टर्स, पर्पल, येलो, बट जनरली अगर हम ऊपर की बात करें, अपने सेल्फ के लिए यूज करना, वो प्रोफेशनल में यूज होता है बहुत ज्यादा, बट अगर हम सेल्फ में बात करें तो ऑरेंज एंड ग्रीन आर जनरली यूज्ड. सो ऑरेंज इज यूज्ड टू करेक्ट योर डार्क सर्कल्स और योर हाइपरपिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स. ठीक है, जिनको लगता है कि हमारे इतने डार्क सर्कल्स हैं कि हमारे कंसीलर से को हाइड ही नहीं होते हैं. सो फॉर दैट यू विल बी यूजिंग अ ऑरेंज करेक्टर टू न्यूट्रलाइज देम, and then you will put a dark concealer over it to cover it. And for the problems which are red in color, basically your active acne, or some people have so sensitive skin that they have redness on their face, so wo use karenge green corrector on those places and then they'll cover it with the concealer. Okay, the first step is color correcting, which is used as a ऑरेंज एंड ग्रीन करेक्टर. ठीक है, अब मेरे फेस पे मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी एज सच बहुत हाइपर पिगमेंटेशन की कि मैं ऑरेंज करेक्टर यूज करूं. आई फील लाइक कि सिंपली एक डार्क कंसीलर से भी मेरा हाइड हो सकता है जो भी अनइवन स्किन है मेरी. ठीक है, सो आई विल बी स्किपिंग दैट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी अ डार्क कंसीलर. सो अब जैसे आई यूज पर्सनली दिस Maybelline एज रिवाइंड एंड दिस LA Pro Girl. ठीक है, अब आपके जो कंसीलर्स होते हैं या फाउंडेशंस होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी होती है. कई होते हैं बहुत लाइट कवरेज, मीडियम कवरेज एंड हाई कवरेज. तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आपके स्किन पे आपको क्या चाहिए, कैसी आपकी प्रॉब्लम है. नाउ आई फील लाइक मेरे भी बहुत अनइवन स्किन थी, बट आई डू वेरी गुड स्किन केयर एवरी डे, सो मेरे बहुत रिड्यूस हो गई प्रॉब्लम. नाउ आई फील लाइक बहुत माइनर से डिस्कलरेशन है मेरी अंडर आईज पे एंड अबव माई लिप, एंड थोड़ा बहुत जो एक्ने के स्पॉट्स रह गए हैं. ठीक है, so for that I'll use a concealer, any of these, and this should be the shade which is 2 times darker than your foundation. So the thing is, foundation should be exactly your skin shade and the concealer should be 2 times or 3 times darker depending upon your unevenness. ठीक है, तो जैसे LA Girl का है, ये बहुत ही
लाइट कवरेज का है, और जैसे ये वाला है दिस इज वेरी थिक कवरेज, इसका थोड़ा सा ही लगाऊंगी तो मैं बिल्कुल एकदम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये स्विच कैसे करते हैं कि सपोज अगर मेरा फाउंडेशन हैवी कवरेज है तो मैंने कंसीलर लाइट कवरेज का ले लिया, या फिर अगर मेरे कंसीलर हैवी कवरेज है सो आई बी यूजिंग अ लाइट कवरेज फाउंडेशन। ठीक है, सो अभी मुझे एक एवरीडे मेकअप लुक क्रिएट करना, तो आई गो फॉर एले गर्ल। ठीक है, so I'll just quickly apply it on my, जहां पे मुझे लगता है मेरी अनइवन है। जनरली लोगों के अंडर आईज पे होता है, अराउंड द माउथ दे हैव अनइवननेस, अ लिटिल बिट आई हैव हियर, थोड़ा बहुत अभी स्क्रीन पे इतना दिख भी नहीं रहा है, विजिबल नहीं हो रहा, बट अदरवाइज in person I can clearly see, and for that I'll be using a blending brush for a concealer। अब जो भी ब्रशेस होते हैं ना, जितने भी पाउडर की चीजों के लिए ब्रश होते हैं, दे आर वेरी फ्लफी। ठीक है, आप उनको हिलाओगे एकदम से उनका एक प्रॉपर फ्लो होता है, जैसे ये है, तो दिस इज अ पाउडर ब्रश। ठीक है, तो कोई भी पाउडर प्रोडक्ट के लिए आप ऐसा फ्लोई ब्रश लोगे, एंड कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट के लिए, क्रीम लिक्विड प्रोडक्ट के लिए आप ऐसे थिक ब्रशेस लोगे विच आर टाइटली पैक्ड, लाइक दिस। ये आपको हाथ लगाने पर चल जाएगा, इन्हीं से ही आपका प्रोडक्ट ब्लेंड होगा, पाउडर प्रोडक्ट उससे नहीं होगा जो बहुत फ्लोई होते हैं। ठीक है, सो आई विल जस्ट blend it into my skin, and you can see how I'm blending it, I'm just dabbing the product, I'm not wiping it or sliding it on my face, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उससे प्रोडक्ट भी हट जाएगा, लाइंस क्रिएट होंगी। if you want to build a coverage then always dab it। you can also use a beauty blender for this, ये blender लिया and you are dabbing it like this। just make sure कि अच्छे से प्रोडक्ट ब्लेंड हो गया है। now I can see it's a little bit darker for my complexion, but it should be because जो मेरे concerned areas थे, जहाँ मेरी unevenness थी, मैं उसके लिए ये यूज कर रही हूँ। अगर मैं सीधा फाउंडेशन लगा देती अपने शेड का, तो जो मेरी डार्कर स्किन थी वो ग्रे पड़ जाती कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो ऑब्वियसली इस शेड से लाइट थी, ये शेड उसके लिए लाइट था मतलब। तो इससे क्या हो गया, अब जहां मेरी अनइवन थी उसके लिए मैंने एक डार्कर शेड अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, अब इसके ऊपर मैं एक लाइटर शेड करूंगी तो वो ग्रेनेस नहीं आएगी। So yeah, I think it's enough। So I feel like अब जहाँ unevenness थी I have used it। Now I'll go to foundation। अब next step होता है, पहले हमने primer apply करा, then comes color correcting, then comes concealing using a dark concealer, and now comes a foundation। Now foundation, this is a medium to high coverage again, so I prefer using MAC। ठीक है, so MAC is kind of a brand जिसमें सबको अपना शेड मिल जाएगा for sure। कई ब्रांड्स होते हैं उनमें इतनी नहीं कलर्स निकाले होते कि you have to mix and match, but MAC में for sure you will find, every one of you can find your shade। So it comes a little high brand, like it's not a drugstore brand, it's a luxury brand। So in drugstore I recommend Maybelline Fit Me, ठीक है, या फिर Maybelline का Superstay। Now Fit Me is a lighter coverage, light to medium coverage, but उसका ही Superstay जो आता है it is a higher coverage, so it's amazing, आप वो try कर सकते हो। Now how to choose your shade in a foundation, so you will take a foundation and you will like this, आपने जॉ लाइन पे लगाओगे। कभी भी आप खरीदने भी जाओ स्टोर्स पे, अब ऑनलाइन जज करना बहुत मुश्किल होता है, तो आई सजेस्ट यू ऑलवेज गो टू स्टोर्स एंड ट्राई इट लाइक दिस। वो आपको हाथ पे दिखाएंगे, आपके यहाँ पे, उसका कोई फायदा नहीं है, आपकी स्किन का कलर यहाँ डिफरेंट होता है कम्प्लीटली फ्रॉम योर हैंड। ठीक है, आपने यहाँ लगाया एंड यू जस्ट merge it, and what you have to check is that it is it should be matching with your neck color। ठीक है, ultimately we want our neck and face to look similar, right? So क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हमारा फेस थोड़ा टैंड होता है, या कंसर्न्स जो होते हैं वो फेस पे होते हैं एंड नेक क्लीन होती है। अगर किसी का उल्टा है, किसी की नेक डार्क है और फेस लाइट है, देन आप नेक को मैच करोगे फेस से। ठीक है, सो दिस इज माय परफेक्ट शेड। कई बार क्या होता है डार्क निकलता है या कई बार लाइट होता है। अच्छा, एक तरीका और है, कभी आपने ऑनलाइन मंगा लिया और आपका गलत शेड आ गया कि आपकी स्किन से डार्क है या लाइट है,
तो व्हाट यू कैन डू, उसी सेम ब्रांड में यू कैन गो फॉर अ लाइटर शेड और डार्कर शेड, फिर आप उन दोनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, उससे आपका एक बहुत परफेक्ट शेड बन सकता है. दैट इज द बेस्ट वे कि आपको किसी में नहीं मिलता आपको कलर. ठीक है, फॉर फाउंडेशन I'll take it on the back of my hand and apply very little coverage. So first I prefer to use it with a brush. ठीक है, मैं डायरेक्टली ब्लेंडर कभी भी अप्लाई नहीं करती, बिकॉज व्हाट आई फील लाइक अगर मैं सीधा ब्लेंडर पे प्रोडक्ट उठाती हूँ तो सारा ब्लेंडर ही अब्सॉर्ब कर लेता है प्रोडक्ट को, हार्डली मेरे फेस पे लगता है. तो व्हाट इज माय टेक्निक इज टू always blend it with the brush first and then I use a blender to smooth it, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लेंडर से एक बहुत ही अच्छी फिनिश आ जाती है. And again you can see my hand movement, I'm just dabbing it, I'm not sliding it onto my face. So this technique is very important. कोई भी आप कोई भी ब्रांड का लेते हो, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, हाउ यू अप्लाई इट, हाउ आर यू यूजिंग इट मैटर्स. आपकी स्किन कितनी प्रेप्ड है. There was a time when my skin was so uneven कि मैं कोई भी फाउंडेशन लगाती थी, it used to turn grey after 2 or 3 hours. But that was the problem in my skin care कि मैं अपनी स्किन का ही जो ध्यान नहीं रखूंगी, the better the canvas, the better उतनी ही अच्छी ड्राइंग बनती है. ऐसे ही आपका फेस का भी है कि जितनी स्मूथ आपकी, जितनी ग्लोइंग स्किन होगी, उतना ही अच्छा मेकअप दिखेगा. Okay, so I'm done blending it. Now I'll just take a damp beauty blender. Not always use a damp beauty blender. What is damp? Basically you are running it under the water, squeezing the excess water, and now it's damp. It's not very wet and dry. It's a personal choice. आप directly भी blender से कर सकते हो, but I feel like ज़्यादा product waste होता है उसमें. And don't forget your neck. Always cover your neck. अभी तो चलो मेरा neck का इतना मेरा visible भी नहीं है, और वैसे भी मेरी बिल्कुल neck से match करता है, तो मैं यहाँ तक कर लेती हूँ इसको apply. अगर आपको लगे कि आपकी deep neck you are wearing, तो you should always apply it नीचे तक. So yeah, I'm done with blending my foundation now. Now it comes to lock it. Always make sure जब भी आप कोई liquid product, cream product use कर रहे हो, you're always locking it. नहीं तो क्या होगा, आपने फोन पे बात करी, आपके फोन पे लग जाएगा, या आपका हाथ लग गया तो वो स्लाइड होके निकल जाएगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कंसीलर भी लगा रहे हो, उसके बाद आपने फाउंडेशन लगाया, तो ऑलवेज लॉक इट विद अ पाउडर. सो फॉर दैट अगेन आई एम यूजिंग माय मैक. यू कैन गो फॉर कलर बार एज वेल, उसका भी बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट. ठीक है, इट्स अ जनरल कॉम्पैक्ट. And I'll just I guess Sangeeta, you have shared your screen. Please switch it off. Yeah, it's good. और इसको भी मैं डैबिंग मोशन में लगा रही हूँ, ऐसे से रब नहीं करते बिल्कुल भी. तो ठीक है. Now I'm done with locking my base. Now it won't move. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू कॉन्टोर, ब्लश एंड हाईलाइट. अब नाउ देयर इज अ गोल्डन रूल इन मेकअप, cream to cream, powder to powder. Once I have done using my cream products, I cannot switch to, like once I am done locking my cream products with the powder, I cannot switch to liquid again और क्रीम अगेन. ठीक है, अब जैसे मैंने लॉक कर लिया पाउडर से, उसके ऊपर मैं फिर अगर मैं सोचूं कि कहीं मेरी करेक्शन रह गई है, यहाँ मुझे और कंसीलर लगाना है, तो उससे क्या होगा, पैच क्रिएट हो जाएगा आपका वहां पे. वो आप कितना ही उसको फिर ब्लेंड कर लो, वो फिर पैची लगेगा आपका वो जगह. तो ऑलवेज मेक श्योर पाउडर करने से पहले कि आपका कंप्लीटली आप सेटिस्फाइड हो अपने बेस से, एंड देन यू लॉक इट, बिकॉज फिर वो स्विच करोगे तो वो पैच ही लगेगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉन्टोर, then blush, then highlight. So for contour, I'm using Hoola right now. This is from Benefit. Now this is a higher brand. So for in a drugstore brand, drugstore is basically affordable brand. तो इसका ही सेम ड्यूप आता है Wet n Wild में. ठीक है, उसकी contour palette आती है with a highlighter. तो it is very good, exactly same result देती है वो भी.
So this is the shade, and this contour should be very ashy color का, ठीक है? Neither it should be very yellow, warm tone, नहीं उनसे ज़्यादा ashy color का होना चाहिए. So how you will contour? You will take a brush like this, जो flat brush है, या फिर हम एक पाउडर ब्रश को लेके उसको ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मेरा पाउडर ब्रश है ये नॉर्मल, ठीक है? उसको मैं ऐसा पकड़ के भी अपना कॉन्टोर ब्रश बना सकती हूँ, ठीक है? अगर जनरली आप देखो तो किट्स में ऐसे एक एंगुलर ब्रश आता है. Now this is automatically flat, so this is a contour brush, ठीक है? Okay, let me use this only. So what I'll do, I'll start from top of my ear towards my lip, ठीक है? This is the area where should be my contour, okay? So एक मैंने ऐसे लाइन क्रिएट कर दी, एंड साथ साथ ही I'll keep blending it. Basically जो एरिया होता है contour का, it should be a 3 from here to here. ये हम 3 बनाते हैं contour करने के लिए, लेकिन depends on your face shape again. अब मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा चबी फेस है, यहाँ से ब्रॉड है, तो मैं चाहूंगी कि मैं इस चीज को कॉन्टोर करूं. मेरा फॉरहेड ऑलरेडी छोटा है, तो मुझे नीड ही नहीं है यहाँ से कॉन्टोर करने की. सो आई विल बी कॉन्टोरिंग हियर एंड हियर, ठीक है? अब जिसको लगता है कि मेरा फॉरहेड बहुत बड़ा है, तो दे कैन स्टार्ट कॉन्टोरिंग फ्रॉम हियर, ठीक है? कॉन्टोर से क्या हो रहा है, एक शैडो क्रिएट हो रही है फेस पे, जो एक इल्यूजन देता है कि आपका फेस स्लिम दिख रहा है, या वो जगह आपकी थोड़ी कम दिख रही है, ठीक है? सो आई कॉन्टोर माई चीक बोन एंड माई जॉ लाइन. अब जॉ लाइन का शुड बी फ्रॉम बिलो योर ईयर टुवर्ड्स योर चिन, ठीक है? लाइक दिस. सेम हियर. And to hide a double chin, ऊपर देख के just on your chin, ठीक है? सो अभी सबसे ज्यादा इसका कहाँ दिखता है इल्यूजन? ऑन स्क्रीन, पिक्चर्स में कॉन्टोर से ही आपका बहुत स्लिम दिखता है फेस. एक बार को मैं बोलूँ कि इन पर्सन आप किसी को सामने से देखो तो नहीं दिखता वो, लेकिन इट डेफिनेटली क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑन स्क्रीन्स, on videos, on pictures. So now I am done with my contour. For blusher, right now I can't find my blusher, so I'll be using a tint, ठीक है? Tints भी आते हैं ऐसे मार्केट में कि जो lip tints होते हैं, you can use it also as your blushers, ठीक है? So you can use your lipsticks as well as your blushers. So this is the tint, and I'll just press it जितना मुझे लगता है required है. And this should be exactly above your blusher. Oh, sorry, your contour. ब्लशर कभी भी कॉन्टोर से नीचे नहीं जाएगा. कई लोगों को ब्लशर यहाँ तक पहुंचा होता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. व्हेन यू स्माइल, ये जो आपकी ये चीज बन रही है, इस जगह पे आपका ब्लशर आना चाहिए. एंड हाउ टू फाइंड योर एरिया, like I have a chubby face, so I always try to put my blusher on here like this. I won't directly place it on my cheek, apple of my cheeks, ठीक है? इससे क्या होगा, ये मेरे cheeks को और emphasize कर देगा और चबी दिखूंगी मैं, ठीक है? तो जिनका slim face है, they can go for your apple of your cheek. लेकिन जिनका थोड़ा चबी फेस है, they can try to wear it here, ताकि थोड़ा uplifted look दिखे फेस का. बाकी again it's a personal choice, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ लगाओ. So these tints are really nice. कभी everyday में जिनको थोड़ा ऐसे blushed look पसंद है, बहुत ही natural आता है इससे. You can also use it on your lips. This tint is from again Benefit Bene. ये बहुत रेगुलर ब्रांड्स में आता है, नाइका का भी आता है, काफी सारे ब्रांड्स में आता है. मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका. बेनिफिट का ही मैं यूज करती हूँ, बेने टिंट, ठीक है? सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हाइलाइटर. सो either you can directly apply a highlighter, but what I do is I'll first fix my makeup using a makeup fixing spray, ठीक है? अब भी makeup fixing spray का क्या काम है? It is not to make your makeup long lasting or anything. अगर कोई आपको ये बोलते हैं कि आपका मेकअप फिक्स हो जाता है इससे, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने किसी तरह पाउडर प्रोडक्ट यूज करा है, इट विल सेटल डाउन इस मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से. तो जैसे मैंने टोनर यूज किया था हाफ आर्म के डिस्टेंस से, I'll just fix my base and I'll let it dry. Semi dry जब हो जाएगा ना, then I'll apply my highlighter, because what happens is then your highlighter will pop more,
तो जो हाइलाइटर जैसे पाउडर वाले होते हैं तो और अच्छे से सेटल होंगे, तो अच्छा पॉप देता है एकदम। दिस इज माय हाइलाइटर ब्रश। इधर यू कैन यूज दिस ब्रश या फिर एक फैन ब्रशेस भी आते हैं, फाइंड इट। ऐसे बड़े बड़े फैन ब्रश आते हैं जो किट्स के अंदर होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। इससे थोड़ा प्रिसीजन से अप्लाई होता है, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ। दिस इज अ हाइलाइटर फ्रॉम शुगर, इट्स अ ब्रांड शुगर। इसकी पूरी पैलेट भी आती है जिसमें तीनों होते हैं, हाइलाइटर, कॉन्टोर एंड ब्लशर, so that is also a very good thing. Now I'll apply it on the cheek, मेरे जो है चीक बोन्स पे, ठीक है, सारे हाई पॉइंट्स पे। हाई पॉइंट्स के होते हैं जो आप फेस को साइड से देखोगे तो जो भी चीजें मेरी बाहर है, ठीक है, वहां वहां मैं इसे अप्लाई करूंगी। मेरे चीक बोन्स हो गए, ठीक है, ब्रिज ऑफ माई नोज लाइक दिस, माई क्यूपिड बो, माई चिन एंड माई फोरहेड, अगेन हियर, ठीक है। अब जब भी मैं लाइट के उसमें आऊंगी तो वहां मेरा फेस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू सी इन पिक्चर्स ऑल्सो। I'll just take a blusher brush, मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है इस पे, and I'll try to merge it, कि अलग अलग कुछ ना दिखे, मेरा कॉन्टोर, मेरा ब्लशर और मेरा हाइलाइटर थोड़े ब्लेंडेड दिखे आपस में, ठीक है। सो वी आर डन विद द बेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। कई बार क्या होता है, सिर्फ आप बेस कर लो तो आपको लगता है कि ये तो मैं बहुत वाइट वाइट दिख रही हूँ, बट कंप्लीट इट व्हेन यू अप्लाई योर लिपस्टिक, योर आई मेकअप, तो वो ऑलरेडी नॉर्मल सटल दिखता है फिर। Now we'll move on to our eyes. So for eyes, I'll first use a eyebrow pencil. So this is a brow pencil from Sugar again. ठीक है, so this is a spoolie, इसको हम बोलते हैं spoolie, और एक तरह होती है हमारी पेंसिल, ठीक है। तो जब भी करो तो पहले हम स्पूली से अपने एक डायरेक्शन में कर लेते हैं हेयर को, ठीक है। यूज अ मिरर। तो इसमें हमने अब स्ट्रोक्स क्रिएट करने हैं लाइक दिस। आई वॉन्ट प्लेस इट एंड ड्रॉ अप ऐसे लाइन, आई विल क्रिएट स्ट्रोक्स जहां जहां मुझे लगता है कि मेरे हेयर कम है। एंड मैंने देखो ऊपर से मैंने यहाँ से शुरू नहीं करा, नेवर स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ना देन दैट विल क्रिएट अ बॉक्स व्हिच वी डोंट वांट। हमें बहुत नेचुरल चाहिए, कभी भी आगे आगे बहुत डार्क नहीं होता ब्राउ, ठीक है। ये करके देन अगेन आई ब्रश माय हेयर इन अ डायरेक्शन, ठीक है। अब थोड़ी मेरी फुलर लग रही है ब्राउज। हेयर आल्सो डू द सेम। अगर आपको लगता है कि आपको आगे जरूरत है कि आगे बहुत कम हेयर है, तो ऑलवेज अप्लाई इट हियर, नीचे अप्लाई करो एंड उसको स्पूली से ऊपर ब्रश करो। उससे क्या होगा, उसका हल्का सा इफेक्ट आ जाएगा ऊपर, इट वोंट क्रिएट अ ब्लॉक ओवर देयर, ठीक है। नाउ वी आर डन विद ब्राउज। नाउ वील मूव ऑन टू आई मेकअप। ओके, नाउ फॉर आईज, अब हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ आई के ऊपर, सो वी वोंट डायरेक्टली यूज एन आई शैडो। फर्स्ट वी विल क्रिएट अ बेस फॉर आवर आई। अब आई बेस कैसे क्रिएट होता है, यूजिंग अ कंसीलर। अब हम स्पेशली आई बेस तो बाय करेंगे नहीं कि अलग से आई के लिए ले रहे हैं, तो एनी कंसीलर, ठीक है, टेक इट ऑन योर आई एंड साथ साथ ब्लेंड इट। आई एम जस्ट यूजिंग माई फिंगर्स, नो ब्रश, नो नथिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, एक आपके आई शैडो को बेस मिल गया टू स्टिक ऑन, और इससे थोड़े कलर्स भी वाइब्रेंट दिखते हैं। कई बार क्या होता है, आप देखोगे आई शेडो लगाया तो कलर्स नहीं दिखते उसके, इतने वाइब्रेंट कलर आते हैं जितने उसके पैलेट में दिख रहे होते हैं। दैट इज बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग एन आई बेस। अगेन आई एम जस्ट डैबिंग इट। ये मैंने पहले इसलिए नहीं करा क्योंकि तब तक मेरी क्रीजेस बन जाते आई पे, सो टू अवॉइड दैट। अब मैंने कंसीलर लगाया, नाउ आई हैव टू लॉक इट like my face, so I'll be taking a compact and locking, ठीक है, like this।
So I have created my eye base. तो अभी तो हम बहुत एक सबसे ज्यादा ना वेरिएशंस आप अपने आई में ही कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन जो होता है आपकी आईज ही दिखती हैं कि अपने आई कैसी करी हुई है. यू आर वेयरिंग अ सिंपल लाइनर और अ विंग लाइनर, और यूर लाइक कैसा आपने आई शेडो लगाया हुआ है, 1 टोन, 2 टोन, 3 टोन, या आजकल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के भी आते हैं, कट क्रीज, स्मोकी आईज, ठीक है. तो सबसे ज्यादा मेन वेरिएशन आपकी आई मेकअप में होता है. तो राइट नाउ वी आर डूइंग अ वेरी सिंपल आई विच इज सिंगल मोनोक्रोमैटिक लुक. मोनोक्रोमैटिक लुक होता है कि आप एक ही कलर को यूज करके उसी को ब्लेंड कर रहे हो पूरी आईज पे, एंड यू आर यूजिंग द सिमिलर लिप शेड ऑल्सो, कि आपके पूरे फेस पे मतलब एक ही टोन का कलर दिख रहा है. नाउ दिस कैन बी यूज्ड इन योर ऑफिस लुक्स और योर एडिटोरियल लुक्स की जो आप अपने सिंपल प्रेफर करोगे. तो दिस इज माई पैलेट. अब हाउ टू चूज योर आई शेडो पैलेट्स. वन मोर थिंग, कि जब भी हम कोई पैलेट बाय करने जाते हैं तो जो रेगुलर ब्रांड्स होते हैं जैसे कलरबार, लैक्मे, मेबेलिन, ये सब जो होते हैं, यू वोंट फाइंड वेरी गुड शेड रेंज, ठीक है. इनकी बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको वैरायटी भी नहीं मिलती कलर्स की. मैक्स दे हैव 10 to 20 आई शैडोज, इतने ही होते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज, फिर लोग क्या करते हैं, इम्पोर्टेड पैलेट्स बाय करते हैं जिसमें बड़े बड़ी पैलेट्स होती हैं, पर क्या होता है उनका फॉल आउट इतना होता है, उनका कलर ही नहीं अच्छा आता आई के ऊपर, तो इट्स नो ऑफ नो यूज. So I'm suggesting you 3 brands, ठीक है. One is Eye Magic. Again, this is an imported brand, but इसका color payoff is amazing. तो Eye Magic हो गया, या फिर एक ब्रांड आता है You Can Be, या फिर एक आता है Beauty Glazed, ठीक है. These are the 3 brands which are again imported, but इनका color pigmentation is amazing. तो इन इसमें I'm using any shade, like I'll be using this shade, ठीक है. I'm taking this shade on a brush. This is a fluffy brush. And first, okay, let me just take a flat brush first. आई मेकअप करने टाइम में अभी थोड़ा वेट है ब्रश. सिमिलरली ये सेम ब्रश मैं ले रही हूँ, फ्लफी ब्रश एंड अ फ्लैट ब्रश, ठीक है. दिस इज फ्लैट एंड दिस इज अ लिटिल फ्लफी. ये 2 ब्रश सफिशिएंट होते हैं टू डू योर आई मेकअप, ठीक है. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग द सेम शेड एंड आई पुट इट ऑन माय आईलिड फर्स्ट. सबसे पहले काम ये होता है कि अपनी आईलिड पे कलर प्लेस कर दो बस. अभी मैं कुछ नहीं कर रही, आई एम जस्ट प्लेसिंग इट, not blending it or anything, ठीक है. I have just placed it. Now I'll use this color, this brush, and taking a little lighter shade like this, ठीक है, or maybe this, इन दोनों से कोई भी ले सकती थी lighter color उससे, and taking that lighter color I'll blend that shade, उसकी जो edges हैं उससे blend करूंगी मैं like this. एंड आप ब्लेंडिंग का तरीका देखो, ब्रश को बहुत दूर से पकड़ना है, इतनी पास से कभी नहीं पकड़ते, जितनी दूर से पकड़ोगे उतनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी. तो लाइटर शेड से आई एम ब्लेंडिंग दैट शेड, ठीक है, लाइक दिस. अब देखो एक स्मोक क्रिएट हो गया, अब वो लाइन नहीं दिख रही, ठीक है, जो पहले दिख रही थी. सिमिलरली ये आप किसी भी शेड से कर सकते हो. इफ यू आर डूइंग अ ब्लू आई, ठीक है, तो आपने डार्क ब्लू लिया, लाइट ब्लू से ब्लेंड कर दिया, या फिर स्मोकी कर रहे हो तो ब्लैक लिया लिड पे और ब्राउन, डार्क ब्राउन से ब्लेंड कर दिया, ठीक है, लाइट ब्राउन से ब्लेंड कर दिया. अब ये सीखना पड़ता है, मेन ये आई मेकअप का ही होता है, वेरिएशन जो भी है. और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आईज ही होती हैं, बाकी सब फटाफट हो जाता है, ठीक है. इस पे भी सेम मैंने प्लेस करा पहले शैडो को, taking the other brush and the lighter shade, I'm blending it in circular motions. जितना कम प्रेशर डालोगे उतना अच्छा ब्लेंड होता है, ठीक है. नाउ आई फील लाइक इट्स अच्छे से ब्लेंडेड है. I can switch to my eyeliner. अब generally I prefer using a मतलब wearing a wing liner. तो वो आपकी आई शेप पे डिपेंड करता है. अब कईयों की हुडेड आईज होती हैं, ठीक है. जनरली नॉर्मली आईज जिनकी बड़ी स्पेसिंग है, जैसे मैं अभी खोल रही हूँ अपनी आई, तो यू कैन सी अ गुड स्पेस इन माई आईब्रो एंड माई आईज, ठीक है. अब लेकिन कई लोगों की होती है हुडेड आईज, जिनका ये चीज जो होती है वो दबा ऊपर आया होता है आई के ऊपर, ठीक है. तो उनके लिए क्या टिप है कि एक तो आई लाइनर कभी भी विंग मत लगाओ, बहुत ही पतला लाइनर लगाओ, और हमेशा एक लाइट शेड यूज करो आगे. और जो मैंने ये कलर पिगमेंट लगाया था
जो ऊपर ब्लेंड करा है वो आप थोड़ा और ऊपर अपने हुड के ऊपर ब्लेंड करोगे, ठीक है, लगाओगे आप भी अपनी लिड तक ही, लेकिन वो ब्लेंड आपकी हुड के ऊपर होगा. नाउ इट्स अ ट्रिकी थिंग, बट एक जनरल मैं आपको बता रही हूँ. एंड आईलाइनर बहुत पतला लगाएंगे सिंस इट्स अ वेरी एवरीडे काइंड ऑफ लुक, बट नेवर स्किप अ आईलाइनर, उससे बहुत डेफिनेशन आ जाती है आई में. देख रहे हो, इंस्टेंटली डिफाइन डेफिनेशन आ गई आई में मेरी. अब आईलाइनर कम्स विद प्रैक्टिस. मुझे भी बहुत मुश्किल से हुआ है कि मैं एक हाथ से लगा पा रही हूँ, अदरवाइज मैं भी पूरा मिरर में घुस के लगाते हैं प्रॉपरली, तो मैं भी वैसे ही लगाती हूँ, बट विद प्रैक्टिस आ जाता है लगाना. तो अभी मैंने बहुत ही लाइट सा लाइनर लगा के आई यूज माई मस्कारा. मस्कारा इज द लास्ट स्टेप. इधर यू वेयर लैशेस, मस्कारा इट्स द लास्ट स्टेप, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट आपकी आईज पे गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वी विल मेक श्योर कि वो आपकी लैशेस से हट जाए. नाउ आई properly curl it from the roots. Like this. Here also. Proper एक curl आना चाहिए. I don't know if you can see, but now mascara is from Maybelline. This is one of my favorites. This is called Lash Sensational. ठीक है. This is the mascara. It is amazing. और liner था sugar से ही. Even Lakme has an amazing liner. Absolute के नाम से आता है, बहुत अच्छा है वो भी. Always go for a matte liner. Glossy liner थोड़े बहुत shine देते हैं, वो इतने अच्छे नहीं लगते. Matte liners are good. ठीक है, so I'm done. अब मैं काजल लगाना ना लगाना is a personal choice. I don't prefer it, क्योंकि क्या होता है ब्लैक काजल से ना आपकी आईज और छोटी लगती है. ठीक है, बहुत लोग मोस्टली लोग वेयर करते हैं, बट इट शुड लुक कि आपकी आंखें कितनी हैं. अब मेरी आईज में ऊपर तो बहुत स्पेस है, बट मेरी आईज बहुत छोटी हैं, तो मैं ब्लैक लगाती हूँ वो और छोटी दिखती हैं. इधर आई कैन गो फॉर अ वाइट काजल और अ स्किन कलर काजल, बट नॉट फॉर अ ब्लैक. Next, I'll go for a lip shade. And for lip shades, to make it long stay, either use a lip liner and fill it and then apply a lipstick, जो bullet form में आती है, or I'll go for liquid lipsticks like this. Liquid lipsticks का stay better रहता है. लिक्विड लिपस्टिक सबसे अच्छी आती है मेबलिन की सुपर स्टे वाली, वो बिल्कुल नहीं हटती और बहुत इनएक्सपेंसिव है. अब क्या होता है, कई लोग जो आपके लिप्स होते हैं ना, दे शुड बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ योर साइज, शेप एंड वॉल्यूम, कि आपका जो अपर लिप है और लोअर लिप है वो इक्वल दिखना चाहिए. कई लोगों के ना क्या होता है, अपर बहुत पतले होते हैं, देन यू शुड ओवरलाइन देम टू मेक इट गुड. क्योंकि कई लोग होते हैं कंफर्ट रहते हैं कि चलो नहीं मेरे शुरू से ही ऐसे हैं, बट पिक्चर्स में इट्स नॉट अपीलिंग. आपका लिप ना बहुत पतला लगता है ऊपर वाला, उस वजह से भी फिर आपका फेस नहीं अच्छा दिखता. तो ऑलवेज मेक श्योर इफ यू वांट टू एक्सटेंड देम, एक्सटेंड इट फ्रॉम द मिडल. कभी भी साइडों से एक्सटेंड मत करो, हमेशा मिडिल से एक्सटेंड करो. जैसे अब मेरे यहाँ बहुत प्रोमिनेंट वी बनता है ऊपर, ठीक है, तो आई फील लाइक थोड़े आजकल फ्लफी पफी लिप्स चलते हैं, तो हल्का सा उस वी को मैंने कवर कर दिया. ठीक है, इट लुक्स अ लिटिल प्लम्पर नाउ. तो लाइक दिस you just extend your lips. ठीक है, so this was the complete look. Let's take your questions now. If you have any, I can again spray or fix and spray if I want, but I think it's done for now. अब मुझे remove ही करना है थोड़ा टाइम बाद. So let's take your questions now. If you have any, आपको अपने लिए कुछ पूछना है, you can ask. You can raise your hand. We'll announce your name and we'll ask you. Yes, Shalvi.
You can unmute yourself. Hello, ma'am. Hello. First of all, I would like to say you are looking so pretty. और thank you for your valuable information. Thank you. मैम मुझे क्वेश्चन जो है एक्चुअली कैनवस के लिए पूछना है. बेसिकली जो हमारा फेस जैसे आप बता रहे थे कि आई हैव इश्यूज लाइक डार्क सर्कल्स एंड स्पॉट्स inside my forehead or around the chin. So हम how to take care, मतलब धीरे स्टेप बाय स्टेप इस चीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और साथ में जब मेकअप रिमूव करते हैं ना मैम, कई बार क्या होता है जैसे मेकअप करा फिर रिमूव किया, उसके बाद जो अंडर आई है वो पफीनेस हो जाती है उसके नेक्स्ट डे के लिए, जैसे स्वेल्ड जैसी हो जाती है. got it. Okay, so what happens is, एक तो आप जो टेक्सचर की बात कर रहे हो, होता है कई लोगों के फेस पे ना बहुत टेक्सचर होता है, ठीक है, तो वो आप मेकअप करने के बाद तो और एम्फसाइज होता है फिर वो, ठीक है. और जो आप बता रहे हो तो देखो मेन कंसर्न तो फिर ये स्किन केयर का आ गया. आप करते हो स्किन केयर? डू यू डू CTM? आप करते हो अपने डेली रूटीन में फॉलो? यस मैम, स्किन नॉर्मली करते हैं, बट वो एक स्टेप, प्रोफेशनल स्टेप कैसे करना चाहिए, मतलब जो एग्जैक्टली होना चाहिए. आपको बताया ना, जैसे फॉलो दिस थिंग, लाइक यू आर क्लेंजिंग इट प्रॉपर्ली. मेकअप लगा के तो कभी सोना नहीं, ठीक है. आप रिमूवर से क्लीन कर रहे हो, फिर आप क्लेंज कर रहे हो उसको अच्छे से. यू कैन ईदर यूज अ क्रीम क्लेंजर ऑल्सो, ऐसे क्लेंजर्स आते हैं, ठीक है, क्रीम बेस्ड ऐसे होते हैं. उससे आप अच्छे से क्लीन करो. पहले तो टोनर स्पेशली यूज करो. जो ये टेक्सचर का प्रॉब्लम है, टोनर ना यूज करने की वजह से आता है, ठीक है. और बाकी आपको बहुत एक्सट्रीम कुछ इशू लगता है कि बहुत ज्यादा टेक्सचर है, तो अपने डर्मैट को सजेस्ट करो, ठीक है. सबसे बेस्ट तो यही रहता है. आपके फेस पे भी जैसा यूज करते हो ना, उससे भी बहुत मेजर डिफरेंस आता है. या फिर तो अपनी हाइड्रेटेड रखो उनको, ठीक है. जैसे हाइड्रेटेड एज इन मास्क यूज किया करो. आजकल तो बहुत वो आते हैं ना जो रेडी टू यूज मास्क आते हैं, 100 रुपीज का सिंगल मास्क आता है डाइट, तो उससे बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है फेस पे. तो लाइक 2 वीक्स में एक बार वो अप्लाई करो, यू विल सी अ मेजर डिफरेंस. ओके, थैंक यू. यस नेहा. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I want to ask, I'm facing a problem with that hooded eyes. Okay. So every time when I do makeup, I struggle with that. It never look big. It actually always looks small and small. So इसके लिए कोई एक trick, Okay. मतलब आप बता दीजिए. Okay, let me just show you how it works. 1 second. Ma'am, I can't see you actually. You can just pin me. एक बार मुझे पिन कर लो पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ. देखो जो आपकी आईज होती है ना, जब हम अपनी आईज ओपन करते हैं तो ये एक लाइन बनती है यहाँ पे, ठीक है. ये आपकी क्रीज लाइन होती है. तो अब जिनकी नॉर्मल आईज है वो तो अपनी क्रीज के नीचे नीचे शेड लगा लेते हैं और ऊपर उसको ब्लेंड कर लेते हैं. लेकिन जिनकी हुडेड आईज होती है ना, यू शुड अप्लाई इट ऑन योर क्रीज, ठीक है. जहां भी क्रीज खुल रही है उसके ऊपर हल्का सा एक फेक क्रीज बनाओ, ठीक है. वहां तक उसको अप्लाई करो एंड देन ब्लेंड इट. तो वो जो ब्लेंड करके जो शेड आएगा, शैडो आएगा, वो आपके हुड पे आ जाएगा, which will create a density create कर देगा आपके हुड पे. तो what we want कि वो हुड पे जब वो कलर स्मोक होके आएगा तो वो एक डेप्थ क्रिएट करेगा आईज में. एंड आगे हमेशा एक लाइटर शेड लगाओ अपनी लिड पे. जैसे मैंने डार्क लगाया है यहाँ पे, तो ऑलवेज प्रेफर यूजिंग अ लाइटर शेड. जैसे शिमर शेड्स आते हैं ना, सिल्वर गोल्डन, ठीक है, तो ऐसा शेड लगाओगे तो आईज बड़ी लगती हैं. ना दिस इज द ओनली हैक फॉर हुडेड आईज. बाकी वो अब आपको मैं प्रॉपर प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आपको समझ आएगा. दैट इज अ लिटिल इन डेप्थ, बट एक तरीका यही होता है कि अपने हुड को डेप्थ दिखाने के लिए उस पे शैडो क्रिएट करना. सो या Thank you. ओके. यस नम्रता. Hi Ashmita, thank you so much for the lovely session. I again have a problem with puffy eyes. So I normally have puffy eyes, and whenever I do makeup, I am unable to hide my puffy eyes, and sometimes they just pop out very badly. So I don't feel like doing makeup then, क्योंकि अगर वो main area ही आपका नहीं hide हो रहा है, then it does not look good. Okay, So any trick? आइस रोलर्स का भी यूज करें आपने? इट्स वेरी इफेक्टिव. एक मार्केट में आते हैं आइस रोलर्स, यू कैन यूज देम.
मतलब कूल, थोड़ा कूल होगा आई एरिया। या फिर एक वो आते हैं, जैसे मैंने आपको सीरम बताए ना, वैसे ही अंडर आई सीरम आता है विच इज अ कैफीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो कैफीन सॉल्यूशन में क्या होता है, वो डी पफी आइज के लिए होता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे एक बार टेक्स्ट करना, ठीक है, आई विल शेयर यू द ब्रांड, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा नाम उसका। सो इट्स वेरी गुड फॉर डी पफिंग द आईज। Sure. कैफीन And सॉल्यूशन। okay, and just one last question. Sometimes हम यहाँ तो मेकअप कर लेते हैं, but when we are wearing anything deep, you know, back deep. बैक, So what? So जो चीज हमने यहाँ पर अप्लाई किया, should we do the similar stuff back पर भी? Just to you can just simply apply a little foundation, या फिर कॉम्पैक्ट से भी, अगर आप पे अच्छी कवरेज वाला कॉम्पैक्ट है तो वो भी, क्योंकि ज्यादा लगाओगे तो आपके हेयर पे लगेगा, आपकी ड्रेस पे लगेगा, तो कोई फायदा नहीं है। और एक तो ये चीज होनी चाहिए, फिर आप अपने फेस का देखो कि आपकी स्किन टोन से ज्यादा वाइट नहीं दिख रहा फेस, तो दैट विल लुक ऑड, कि आपके हाथों का कलर या आपकी बैक का कलर डिफरेंट लग रहा है आपके फेस से। तो मेकअप आप उस अकॉर्डिंग करो कि आपकी नेक के साथ, क्योंकि जो नेक का यहाँ कलर होगा पीछे भी ऑलमोस्ट वही रहता है। yeah. हाँ, मेक श्योर कि बहुत लाइट नहीं जा रहे हैं आप अपनी स्किन, और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2-3 घंटे बाद ऑब्वियसली। तो या Thank you so much. That's all I have. Thank you. यस सुनीता। हेलो मैम। हेलो मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, नाइका, हुडा, अरोमा या मेबलिन, हम जब एक किट अपना रेडी करते हैं तो हमारे पास सब अलग अलग प्रोडक्ट हैं। इस टाइम पे भी अलग अलग मेरे मेकअप में होता है। तो जैसे आज आपने बताया 3-4 कंपनीज के आपने ब्रांड के नाम लिए मेरे सामने, तो क्या उससे बेटर होता है कि हम एक ही कंपनी का मेकअप बॉक्स बनवाएं, या जो आपने बताए हैं हम उनको भी रख सकते हैं? नो, आई वुड रिकमेंड ओनली इन द केस ऑफ योर स्किन केयर। ठीक है, स्किन केयर में क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं, तो वो हम सोचते हैं चलो एक ही चीज का ले ले हम, CTM। ठीक है, लेकिन जो मेकअप होता है वो तो आप पर्सनली जिस ब्रांड का आपको जो अच्छा लग रहा है वो लो। ठीक है, बीट ए फाउंडेशन, अ कंसीलर या कुछ भी, वो तो आप कंसिस्टेंसी देख के आप जज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंसीलर लाइट वेट है तो फाउंडेशन हैवी कवरेज का ले लो। एंड ऑलवेज आई विल से हर डिफरेंट ब्रांड्स का एक्सप्लोर करो। हर जरूरी नहीं कि एक ब्रांड का सब कुछ ही अच्छा हो, क्या पता आपको किसी का कंसीलर अच्छा लग रहा है, किसी का फाउंडेशन अच्छा है, किसी का पाउडर अच्छा है, तो एक्सप्लोर डिफरेंट ब्रांड्स, इट्स कंप्लीटली गुड। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यस टिम्पी। Hello, ma'am. Hello. How are you? Hi, I'm good. How are you? I'm fine, thank you. मैम आपने ये बताया कॉम्पैक्ट से हमें लॉक करना है फेस को, उसके बाद प्रिंसिपल है पाउडर यूज पाउडर प्रोडक्ट एंड इफ यू यूज क्रीम प्रोडक्ट। मैम जब आपने आईज का मेकअप किया था तो आई थिंक आपने क्रीम प्रोडक्ट यूज किया था पहले लिड पे आई शेडोज, और उसके बाद फिर दूसरा भी आई शेडो लिक्विड बेस किया था। नहीं, मेरे आई शेडो पाउडर थे, जैसे ये अच्छा, दोनों आई शेडो पैलेट थी, तो ये पाउडर है सारे। ओके, इट लुक्स एक्चुअली लिक्विड ऑन स्क्रीन। वेरी गुड पिगमेंट पे ऑफ, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा पे ऑफ है इनका, पर ये पाउडर है। ओके मैम। और मैम टोनर एंड फिक्सअप मेकअप आपने जो बताया, हम शुगर का भी यूज कर सकते हैं मैम? शुगर का हमारे पास है, उसको जब हम फिक्स करते हैं तो उसमें थोड़ा स्पार्कल मतलब लाइट में शो होता है हल्का सा। होता है बहुत फिक्स एंड स्प्रेज में अलग अलग आता है, किसमें पिंक शाइन होती है, किसमें गोल्डन होती है, तो हाँ जी, बात है, हाँ आप यूज कर सकते हो। ओके गुड, या गुड, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। यस मेघना। हेलो मैम। हेलो मैम आई वांट टू आस्क कि मेरे पास ना ये एक चीज है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। दिस इज ट्रिमर, फेस ट्रिमर। इस पे लिखा हुआ है मैम डबल वियर कवर पेन स्टिक। ओह, पेन स्टिक, ओके ओके। तो मैम ये क्या चीज है, इसको कैसे मैं यूज करूं, मुझे समझ नहीं आता इसका। देखो ये फाउंडेशन है एक तरीके का, इट्स अ क्रीम फाउंडेशन। ठीक है, तो इससे बहुत थिक कवरेज आती है आपके फेस पे। 1 सेकेंड, या सो पैन स्टिक एक थिक फाउंडेशन ही होता है। यू कैन ईदर यूज इट एज अ कंसीलर आल्सो, कि आपने थोड़ा थोड़ा अपने जहां अनइवन है अकॉर्डिंग टू योर शेड, कि क्या शेड आप यूज आपके पास है, तो अगर आपको लगता है आपके कंसीलर की तरह यूज हो सकता है तो उस पर यूज कर लो, या फिर फाउंडेशन की तरह भी यूज कर सकते हो। बट मैम मैं इसको जब भी यूज करती हूँ ना मुझे पिंपल हो जाता है। क्योंकि आपका स्किन टाइप क्या है? आपका ऑयली है मैम, ऑयली है।
फिर ऑयली के लिए मैंने आपको बताया ना कि लाइटर कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट, ठीक है, कभी भी बहुत थिक में नहीं जाना आपको, दिस इज वेरी थिक फॉर योर स्किन, तो डोंट यूज इट। ऑयली स्किन पे तो कभी भी हम क्रीम बेस नहीं यूज करेंगे, ऑलवेज यूज अ लिक्विड फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन। तो सारे पाउडर्स मुझे जो भी लेना है प्रोडक्ट सारा, ये क्या लेना है मुझे? लिक्विड बेस्ड? लिक्विड बेस लेना है, चाहे आप कंसीलर भी ले रहे हो तो वो भी ऐसे पैन स्टिक वाला नहीं, लिक्विड कंसीलर, लिक्विड फाउंडेशन। पाउडर तो बाकी पाउडर ही होता है। थैंक यू मैम। ओके, कौन रह गया? यस, ईशा एंड प्रीति। ओके ईशा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ईशा। Hi, ma'am. हेलो, हाय, How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। Yes, ma'am. अगर हम आफ्टरनून को किसी पार्टी में जाते हैं तो हम सनस्क्रीन भी यूज करते हैं, तो मैम कभी यूज करना चाहिए, आफ्टर मॉइस्चराइजिंग क्रीम या प्राइमर? देखो वैसे तो आपके मॉइस्चराइजर्स में आजकल फाउंडेशंस में भी SPF आता है, लेकिन हाँ जब हम डे का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो SPF इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप अपने मॉइस्चराइजर के साथ यूज कर सकते हो पहले बार में। इधर यू कैन स्विच कि आप मॉइस्चराइजर की जगह एक सनस्क्रीन अप्लाई कर लो। नाउ अगेन डिपेंड्स है आपकी सनस्क्रीन क्या है, आजकल स्प्रे फॉर्म में भी आती है, ठीक है, और क्रीम फॉर्म में भी आती है, तो वो आप उसमें टाइम में अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर योर टोनर यू कैन यूज इट। Then, ma'am, what is the difference between a loose powder and then अ कॉम्पैक्ट पाउडर? compact? Yeah. देखो लूज पाउडर की ना कवरेज थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, प्रोफेशनली सब लूज पाउडर्स ही यूज करते हैं। इवन आई हैव राइट नाउ, दिस इज फ्रॉम शुगर, ये भी लूज पाउडर है, ठीक है। लूज पाउडर अब क्या होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आता है, लेकिन जनरली लोग यूज करते हैं बनाना पाउडर एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर, ठीक है। अगर हम लूज पाउडर में आए तो काम दोनों का सेम है। कॉम्पैक्ट्स आर इजी टू कैरी अगर हम एवरीडे मेकअप की बात करें, लेकिन लूज पाउडर्स एक प्रोफेशनल एज इन प्रोफेशनली वही यूज किए जाते हैं। तो जो लूज पाउडर में बनाना पाउडर होता है दैट इज फॉर डस्की स्किन, ठीक है, जिनका थोड़ा वीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है, एंड ट्रांसलूसेंट वर्क्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है, जनरली टिल मीडियम। अगर डस्की पे जाएं तो हम एक बनाना पाउडर यूज करते हैं, उससे थोड़ा ब्राइटनिंग का काम करता है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। या यस प्रीति। Hey ma'am, first of all, hello. हेलो प्रीति। यस प्रीति। I asked that many of are using it as eyeshadow, then it is both. Sorry, your voice is interrupting. Preeti, you can try typing in your question because आपका जो voice है वो बहुत break हो रहा है. I think you're facing some network issue. Okay, ma'am. Till then, let's take another. Let's take Purvi's question and Sirmoy. Either of you can unmute and ask. Hello, sir. Hi, ma'am. Okay, let's take Purvi's first. Yes, Purvi. Okay. Good evening, ma'am. मैम मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जब भी हम लिपस्टिक लगाती हूँ मैं, तो वो कुछ टाइम बाद में क्रैक्स में फिल हो जाती है और पोर्शंस पे से हटके क्रैक्स में आ जाती है, तो क्या उसके लिए लिपस्टिक के पहले कोई बेस है जो अप्लाई कर सकते हैं टू एंश्योर कि वो क्रैक्स में ना जाए? या जैसे मैंने भी लिप बाम लगाया था पहले, तो ऑलवेज जब भी आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हो ना, पहले लिप बाम लगा लो अच्छे से, ठीक है, हाइड्रेटेड तो रखना ही है लिप्स को, ठीक है। बाकी क्या एक होता है, कईयों के नेचुरली बहुत ड्राइंग होते हैं लिप्स, ठीक है, वी कैन हेल्प देम। कई बार क्या होता है लिपस्टिक सेटल हो जाती है, जिनकी लाइंस होती है लिप्स में, तो गो फॉर बुलेट लिपस्टिक्स, अवॉइड यूजिंग लिक्विड वंस, ठीक है। बुलेट लिपस्टिक्स कभी भी सेटल नहीं होती। बाकी अगर हाँ, बाकी यू कैन हाइड्रेट देम एंड देन आफ्टर जब लिपस्टिक का टाइम आए then you can remove that and apply the lipstick. Remove your lip balm. Lip balm के ऊपर नहीं करना। फिर क्या होगा, अगर आप कोई भी मैट लिप बाम लगा रहे हो सपोज, तो उनका फॉर्मूला मिक्स हो जाता है, उससे भी थोड़ा पैचीनेस आती है, ठीक है। तो मीनवाइल आप मेकअप कर रहे हो, तब तक आपके हाइड्रेट हो रहे हैं लिप्स, एंड देन यू अप्लाइंग लिपस्टिक। ओके, एंड बुलेट लिपस्टिक डायरेक्ट फिर अप्लाई कर सकते हैं? यस। ओके, और एक क्वेश्चन मैम, अब जैसे हम लोग, आपने स्किन केयर का बताया, हम लोग मोस्टली क्या होता है कि जनरली स्क्रीन के सामने ही वर्क होता है हम लोग का, सो ऐसा कुछ रेकमेंडेड है? बिकॉज स्क्रीन से भी एक स्पेसिफिक लाइट आती है, बीट लैपटॉप स्क्रीन और
आईपैड स्क्रीन व्हाटएवर या मोबाइल की स्क्रीन, तो उसके लिए कोई यानी बैरियर या कुछ वी कैन क्रिएट ऑन आवर फेस? नहीं, this is sufficient if you are doing CTM ना and you are applying sunscreen. Now sunscreen is important, ठीक है, लेकिन मैं जब बोलती हूँ जब हम बहुत पार्टी मेकअप या हेवी मेकअप्स कर रहे हैं ना, तो हम अवॉइड कर सकते हैं सनस्क्रीन, लेकिन वैसे तो आपने लगानी ही है। अगर आप घर से बाहर नहीं भी जा रहे, घर पे भी हो, तब भी सनस्क्रीन एंड CTM इज इनफ टू प्रोटेक्ट योर स्किन। Okay. Oh, so basically sunscreen daily we can apply. हाँ, सनस्क्रीन तो आपके जो डेली रूटीन में है वो आपने लगाना ही है। Yes. Okay, and along with that, हम अवॉइड इसलिए करते हैं जब हम हैवी मेकअप करते हैं, कई बार सनस्क्रीन होती है ना, थोड़ा ग्रेनेस देती हैं फेस पे, कई सनस्क्रीन में टिंट्स होते हैं या कुछ होता है, वो थोड़ा ग्रे करती हैं, SPF जो होता है बेसिकली। तो आजकल तो वैसे भी मॉइस्चराइजर्स में, आपके फाउंडेशंस में ही, मोस्टली सब फाउंडेशन में आपका SPF होता है। okay. So daily using sunscreen won't be affecting the skin? No, never. Sunscreen is a must. जैसे CTM है वैसे ही सनस्क्रीन भी है। ओके मैम, CTM का बस एक वन लाइन में आप ब्रीफ कर सकते हो क्या? एक्चुअली उस टाइम पे थोड़ा वॉइस क्रैक हो गया था, जस्ट वन लाइन ब्रीफिंग। CTM is cleansing, toning and moisturizing. Cleansing is to clean your skin, जो भी impurities है, left over makeup है, उस टाइम क्या होता है आपके pores open हो जाते हैं, to close them we use a toner, ठीक है, and then to moisturize your skin we use a moisturizer. Okay, fine. One last question. I'm so sorry. It's just the last question. I'm so sorry, but my dear, that's not how we can go on, right? Yeah. Okay. No problem. You can ask me on my Instagram. No worries. You can DM me. Yeah. I'll do that. Thank you so much. Okay, Shrimoy, you can go ahead. Hi, Asmita. Hi, Harry. I have a couple of questions to ask. First of all, I have a quite, broad forehead. So could you share some tips, how to manage that? Like, like you said that concealer can be used for this. What other tips? Contour. While we contour our face, okay, then we can contour our forehead also, like this. Okay. This is the area you can apply your contour and just blend it upwards on your hairline. That will create a shadow of a slim, like a short forehead. Blend it upwards towards the hairline, right? Yeah. You say? Towards the hairline, Okay. yeah. This, thank you so much. The second question is, would winged eyeliner look be good for business casual or semi formal look? Like I showed you, just a little, बहुत ऐसा कुछ specific नहीं है वैसे जो आपके face पे suit करता है, but in general in formal looks we apply a very thin liner या फिर एक smudged liner लगा सकते हो आप। थोड़ा जो होता है wing liner थोड़ा dramatic लगता है, बाकी again depends on your personal choice and face shape कि क्या suit करता है आप पे। Right. Thanks, Asmita. That's all from my end. Okay, so that would be it. I would just, request Asmita to take Preeti's question in the chat box. I want to ask, many of us are using highlighter as an eyeshadow. So is it good or is it not? She's asking. Yeah, it's absolutely fine. वही same pigment ही रहता है जो आपके highlighter का है. In fact और अच्छा आता है highlighter का जो shade होता है वो और थोड़ा blingy and थोड़ा होता है तो वो आप use कर सकते हो. All right, ladies, so that would be it. Let's give Asmita a leave here. I'm sharing her Instagram details into the chat box. Make sure you guys follow her and are very, very conscious of how to go about it. I'm sure she would be more than happy to take your questions and even take personalized sessions for that matter. Thank you so much, Asmita. It was a pleasure having you here, and have a lovely evening ahead. Thank you so much, guys, for being so patient. Great. Bye-bye.